Hi everybody, wish you a very happy Independence Day and welcome back to the Magic Hour. I was trying to see today if I could actually use the light of the Magic Hour, which is why this is called the Magic Hour. And I don't know if I've been successful, but you tell me. So today I'm going to be speaking to a very old and very dear friend of mine who I haven't probably spoken to in quite a few years. In fact, we don't necessarily keep in touch on a one-to-one, but yes, we are always following each other on social media, and we do know what's going on with one another. So I just thought it would be lovely to have him back because he's been a voice actor for a long time. He's a fantastic singer. He's really truly multi-talented, and I'd love for you to meet him. So let me get him on. Hi, namaskar, Mona ji. How are you? Hi, how are you? Good. Very good. So good to see you. How are you doing? So good to Very see good. you after so long. I know. I How mean, this long is so. is it? It's a few years, I think. Probably yes. It's Yeah. been like on and off. हम लोग मिलते रहे हैं, but मतलब not like meeting Yeah. kind of, you know. Like how that we kind of a used to thing. hang out together for hours and hours. Absolutely, and hours and yeah. hours during dubs All and those things like that. laughters, all those food, you know. Like, Yeah. Awesome experience. Yes. Yeah. So tell me, how's the lockdown treating you? How have you been? Well, lockdown is like it's hit everybody. सबको कुछ ना कुछ दिक्कतें हुई हैं इसकी वजह से, और पूरे दुनिया को तकलीफ हुई है. I mean, so obviously मुझे भी हुई है, but कहीं ना कहीं हम लोगों को कोप अप करना ही पड़ेगा इस चीज के साथ. Initial first month, and first 2 months were very tough because we didn't know where we are going, where we are heading. Now there is a lot of hope, you know, from everywhere pouring in. So we have understood the bimari, we've understood how to tackle, how to keep us safe. पहले तो मतलब, you know, you won't believe, मार्च में जब हम just बाहर निकलते थे तो हवा भी ऐसी जहरीली महसूस होती थी कि कहीं हवा से कुछ ना हो जाए. We were so scared. But now we understand that we have to live with it and just, you know, taking care of as much as we can. That's it. Yeah. And you know, I think we are all just getting now a little comfortable with the fact that we think we know how to deal with it, or we think we know how to keep ourselves safe. And we have understood that we have to live with this. You know, it is not going to go anywhere. Right. We just have to be careful. Right. You know, that's the only thing. Yes. Yeah. Absolutely. Till any vaccine and also comes. It's going to be quite a long time actually that we have to deal with this. So we might as well learn to live with it and learn to get on with our lives also. अगर आज भी वैक्सीन आता है तो हम लोगों के नसीब में आते आते 2023 हो जाएगा. So we have to be careful. So that is the only important thing we can do. You know. So that is the thing. Yeah. But we have understood. We have started working. I've gone for recordings. I've gone for shooting, taking all the safety measures and everything. So we have understood. आपके यहाँ भी काम शुरू हो गया है Sound and Vision में. So everywhere, you know, yeah. In fact, everybody that was started the reason, working. that's how that was the only thing we were scared about. Yeah, in fact, that's how this whole Magic Hour thing started, because you know, I could really feel the pressure that everyone was feeling from the lockdown, that, you know, we're sitting at home, we're not doing any work. Absolutely. पता नहीं काम कब शुरू होगा. You know, people were a little low on morale. You know, how is this going to affect us in the long run? Will we ever have an income? When will our income start again? So we started it to boost people's morale, to make it informative, educational. We also started telling people how to set up their own home studios. And I'm speaking to the expert. I have done one too. Who's had I'm speaking to the expert who has probably had a home studio. I think 20 years ago when I must have come to your house, you already had a home studio. Yeah, probably. I had some small one, but now, now things have improved. Hardwares have improved. Have come. Yeah. A lot of things have happened. And you've always been quite a techie, haven't you? In that sense. Yeah. मतलब टेकी ये कहते हैं ना कि मजबूरी में आपको चीजें सीखनी पड़ती हैं, तो मैंने मजबूरी में चीजें सीखी हैं, बिकॉज हर वक्त आप हर एक के उसमें सहारे से नहीं जी सकते हो, समवेयर और दी अदर. और ये कोरोना ने तो सबको सिखा दिया
कि आपको खुद अपने को एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि आप क्या कर सकते हैं एक्स्ट्रा, एंड पीपल हैव गॉन आउट ऑफ द वे टू अंडरस्टैंड देमसेल्व्स, देयर ओन psyche, their own mind, their own talent. I have developed so many talents during Corona. Cooking. मैंने इतना किया, अब मैं I can be a chef now. I mean, I have understood so much. I know. I've been following you, and you've been doing some really fun and really exotic cooking. And of course, I always follow your photography and your singing. So this is now a new feather in your cap. But I think you always had the interest, no? Yeah. You always had the interest. मेरे डैड कुक करते थे in Odisha. In Odisha, it's a trend that men cook non-vegetarian dishes more than women. On mostly on weekends like Saturday and Sunday. हम लोगों को, मेरे डैड को भी बहुत शौक था बनाने का. My father had a Midas touch. Even वो leftover खाने का भी ऐसी चीजों को बना देते थे, मतलब फ्राई करके चीजें, कि it was like so yummy. So I have understood कि यार खाना, it's all about the taste buds, nothing else. अगर अच्छा लगता है तो इवन आप एक फ्राई किया हुआ कड़ी पत्ता भी आपको उतना टेस्ट दे सकता है, rather than नॉर्मल धनिया का पत्ता नहीं दे सकता. That's what I've understood. और इतना सारी सब्जियां धो के फिर उनको पका के, I mean, इतना कुछ आ गया है कि I can, some hotel can, call me, be their employee as well to be part of their cooking this thing. इतना कुछ सीख लिया है. सब्जियों को कैसे धोना होता है, कैसे काटना होता है, क्या क्या चीजें, जूलियन क्या होता है, ये क्या होता है, सारी चीजें, क्या. Seriously, ये सब बहुत लोग सीख चुके हैं. And being a photographer, it helps, Basically, मैंने ये चीज देखा है कि जब तक प्रेजेंटेशन खाने का प्रॉपर नहीं है तो आपको भूख भी नहीं लगती है. I have seen many people just, sending inbox messages saying कि don't show us that kind of food. आप नॉर्मल फोन से क्यों नहीं क्लिक करके डालते हो? मतलब आपका एक चावल का दाना अलग दिखता है बिरयानी में and stuff like that. Why do you do that to us? I said, bro, I just need to, present. जब दाना अलग अलग है तो अलग अलग दिखना चाहिए फोटोग्राफ में. So that is how I do. So it's fun, I've learned so much. At this age also I'm learning. So it's a beautiful experience, I would say. But very sad that so many people have died in the world and so many people have gone unemployed. तो ये चीजें बड़ी दुख की वो है. इसलिए, और हर इंसान 10 साल पीछे चला गया अपनी जिंदगी में, मैं ये समझता हूँ. जो थे हम लोग, इमेजिन कीजिए जब मैं आया था, जब वॉइसिंग मैंने शुरू की थी, तो वो मुझे लगता है कि मैं वहीं पहुंच गया हूँ वापस. एंड अगेन आई हैव टू स्ट्रगल फॉर another 20 years to come back to what I was. But we जल्दी से जल्दी So tell me, when did you come to Mumbai? When did you come to Mumbai? I came in the year 2000 and मुझे याद है, not 2000 exactly, it was 1999 September 4th, so उस दिन आया मैं मुंबई, और उस दिन जन्माष्टमी थी. उस दिन भी जन्माष्टमी थी. मैं पैदा भी जन्माष्टमी पे हुआ हूँ. तो जब मैं आया और मुझे पता ही नहीं था मैं ट्रेन. थैंक यू. 11 को मेरा, थैंक यू. 13th को was my birthday and 11 को जन्माष्टमी पे भी लोगों ने विश किया है, जैसे तिथि के हिसाब से विश करते हैं. तो तब मैं मुंबई आया. मुंबई आने के बाद मुझे पता चला साउंड एंड विजन के बारे में, फिर लीला जी के बारे में, एंड फिर मैं मिलने गया. these experiences are so sweet. उस टाइम पे हम लोग डर में रहते थे कि पता नहीं काम मिलेगा नहीं मिलेगा और क्या होगा क्या नहीं होगा. I was like, मैं तो आरजे रह चुका हूँ. I was working as an RJ in Dubai. So मुझे बड़ा मैं ओवर कॉन्फिडेंट था. मैंने कहा नहीं यार, जाऊंगा आराम से. वॉइसिंग क्या है, ये जैसे आवाजें निकालता हूँ, मिमिक्री कर लेता हूँ, जाऊंगा वॉइस वो करूंगा और वो लोग मुझे काम दे देंगे. एंड यू वोंट इमेजिन, तब स्टुअर्ट लिटिल की डबिंग चल रही थी, मुझे याद है. तो मैंने सोचा कि ये वाला कैरेक्टर मैं करूंगा, बट आई नेवर न्यू दैट इज नॉट माय डिसीजन, Then Leela ji was looking at me. I can remember she was looking at me saying के let us decide what you will do. Then मुझे चूहे का डबिंग मिला. चूहे की वॉइस पे. I remember this whole sweet little story that you told us during my mom's prayer meet about how you were preparing for this role. Correct. Yeah. So would you like to tell everybody about that? Yeah, that's what I'm saying. कि मतलब मुझे था कि शायद फादर का या कोई और कैरेक्टर मिल जाएगा, मुझे नहीं पता था. मैंने कहा यार मैं मुंबई में आया हूँ इतनी उम्मीदें लेकर सब करके, एंड एट द एंड ऑफ द डे आई एम डूइंग है. तो लीला जी was like, it is the main character of the
फिल्म कृष्णा, यू डोंट टेक इट एज अ चूहा और समथिंग लाइक मैं भी फिर आवाजें बदल बदल के कर रहा हूँ एंड ऑल, because it is very difficult to understand how the thing has to be dubbed, how the lip sync and everything has to be done, and that too you are dubbing, their lip sync is in English and then you have to merge into that, and that open lip, close lip, इन चीजों का, सब चीजों का ध्यान रखना सीखा, बहुत कुछ सीखा, इतना सीखा मैंने साउंड एंड विजन से कि आज मुझे लाइफ में कहीं ना कहीं डेफिनेटली हेल्प करता है। सो आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर टीचिंग अस सो मच। एंड अभी आपने थोड़ी देर पहले ये बात कही थी कि कि आपने थोड़ी देर पहले ये जिक्र किया था कि हम लोग ऑन एंड ऑफ बात नहीं कर पाते या मिल नहीं पाते, बट मोना जी मैं आपको आज भी एक एम्प्लॉयर की तरह देखता हूँ। मैंने आप के अंडर काम किया है, लीला जी के अंडर काम किया है, तो चाहे दुनिया में हम कहीं भी पहुंच जाएं हमेशा वो रिस्पेक्ट बरकरार रहेगा आप लोगों के लिए। तो दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमने इतना कुछ आप लोगों से सीखा है। आप भी बैठा करती थी, हालांकि आप इतना ऑलरेडी आप बहुत बिजी थी, यू वर वेरी बिजी, यू नॉट कमिंग रेगुलरली। लीला जी यूज्ड टू सिट फॉर आवर्स टुगेदर एंड टीचर्स कभी कान पकड़ के खींच के हमको इतना कुछ सिखाया है, बहुत कुछ सिखाया। मुझे भी कान पकड़ के ही बिठाती थी, मैं तो बाकी समय अपना वॉइसिंग करती हुई घूमती थी, यहाँ वहाँ घूमती थी, डूइंग माई ओन वॉइसिंग वर्क, और whenever she needed help I would come and help out. So that time those were the days, really. We had so much fun in terms of we were all so footloose and we used to see you dubbing all. We were so impressed with you seeing dubbing, all the big heroines of that era, and हमें लगता था आप कैसे इतना अच्छा कर लेते हैं, कितना इतना अच्छा मॉड्यूलेट कर लेते हैं। Some people I have learned from is Virat, and I've seen doing so much dubbing, and निनाद कामत, इन सब लोगों को देखा है, राजेश जी को देखा है, बहुत सारे ऐसे नाम लेने लगूंगा तो बहुत नेम्स आएंगे मेरे सामने, बट हमने इन लोगों को देखकर बहुत कुछ समझा है कि नहीं यार, समवेयर और दी अदर आई एम नॉट व्हाट आई वाज थिंकिंग आई वाज, इट इज वेरी डिफिकल्ट एंड आई हैव टू लर्न, देन वी स्टार्टेड लर्निंग। सो ये गलतफहमी से निकलना बहुत जरूरी है कि वॉइसिंग है यार, हम तो आवाजें निकाल लेते हैं, हम कर लेंगे जाके। इट इज नॉट फन गाइज, जो भी आज इस माध्यम से देख रहे हैं इस चीज को समझे, इट्स नॉट इजी, नन ऑफ द फील्ड इज इजी, यू हैव टू समवेयर और दी अदर, पापड़ बहुत बेलने पड़ते हैं और तब जाके हम आगे पहुंचते हैं। Right, and I remember you used to entertain us so much with all the caricatures and all the mimicry and all the funny take you had on everything. But I think, see, some people are blessed with that kind of talent and that level of observation that they can bring it out. But even then, I think everybody has their challenges. So what would you say were your biggest challenges when you came and started dubbing? My biggest challenge is I don't have a very good speaking voice. I am a singer. मैं गा सकता था अच्छा, लेकिन मेरी स्पीकिंग वॉइस इतनी इम्प्रेसिव नहीं है कि मैं एक लाइन बोलूं और बंदा सुनने का उसको बार बार दिल करे वैसी। तो मुझे ये समझ में आया कि मैं सिर्फ क्राउड डबिंग्स तक सीमित रह जाऊंगा, that I understood, but then I learned from the other artists how they modulate, which is very, देखो आवाज एक ऐसी चीज है जो हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन हमारी स्टाइल ऑफ डिलीवरी को हम बदल सकते हैं, द स्टाइल ऑफ स्पीकिंग को हम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर। तो वो चीजें करते करते फिर धीरे धीरे वन लाइनर्स और क्राउड से धीरे धीरे कैरेक्टर्स मिलने लगे। तो फिर मैंने समझा कि नहीं, ये फील्ड इतना आसान नहीं है जितना हम समझते हैं कि अमित जी की आवाज निकाल लेता हूं तो मैं शायद कि मैं वो भी हर चीज को अमित जी नहीं कर सकते हम, या हर चीज का जजंतरम बमंतरम में भी मैंने तो डबिंग की है, लेकिन you can't be Gulshan Grover in every character, so you have to understand that it is not easy. But मेरी नॉर्मल आवाज है, जब मैं नॉर्मली बात करता हूँ तो I think Sachin, that is what I would feel, like my voice is so I can say that kind, it is very close to that. So इस तरह के, वो तो इतने बड़े क्रिकेटर हैं तो उनको आवाज ने कभी वो नहीं किया, मतलब उनकी कमी को मतलब छुप गई because of his own persona, the way he played cricket for us, he was God for us. But वहीं कृष्णा बेओरा की सेम आवाज अगर हो, डबिंग इंडस्ट्री में जाना चाहे तो नहीं कर सकता है, इट इज डिफिकल्ट। बट आपको आपकी आवाज समझना बहुत जरूरी है, वो आप नहीं समझ सकते हैं, आपको डबिंग डायरेक्टर ही बता सकता है कि आपको किस तरह के कैरेक्टर्स करने चाहिए और
वो अगर अपने घर पे आपके घर वाले या आपके पड़ोसी आपसे कहते हैं कि यार ये बहुत बढ़िया आवाज है आपकी, तो डजंट मैटर, बट एक जब आप माइक के आगे बोलते हैं बहुत मैटर करता है। सिमिलरली सिंगिंग में भी ये चीज है। तो कोई भी गाना, and you were singing right from the beginning, right? You were singing with us even for the dubbed films. You were singing right from the beginning. You were singing. एनिमेशन सिंगिंग मैंने सिंगिंग का ही इनफैक्ट ज्यादा काम किया है, और आई यूज्ड टू डू क्राउड डबिंग्स, एंड आई वेरी प्राउडली से कि दिस हैज गिवन अस ब्रेड एंड बटर, एंड मोर देन ब्रेड एंड बटर इट हैज गिवन अस so much to deal with life, so much to understand. People have helped me, all my closest friends like Pinky, Anju, and these people उस era में जो लोग काम करते हैं, these people, लीला जी तो नहीं है, she is like a godmother, but ये लोग भी कहीं ना कहीं इन लोगों ने उस वक्त पर मुझे सपोर्ट किया जिस वक्त मेरे साथ कोई खड़ा नहीं था। So I always honor these people, always respect them. एंड हम लोग नहीं मिल पाते हैं रोज। मैंने कितनी बार कहा है कि एक ऐसी क्राउड डबिंग पुराने लोगों के साथ रखी है कि हम सब आए एक दिन और वी शुड हैव फन, एक डब भी हो जाएगा और मजे करें। एंड सिमिलरली वैसे ही प्रदीप दा की लाई हुई बिरयानी हमको खाने को मिले, ऑर्डर की हुई, एंड दोज इयर्स मैन रियली आई फील ब्लेस्ड, आई फील सो ब्लेस्ड कि हमने बहुत अच्छा करा है, बहुत अच्छा वक्त देखा है। या किंग जुलियन वाज अ कैरेक्टर जिसके लिए वो था हिल हिल के नाचो नाचो, हिल हिल के नाचो नाचो, हिल हिल के नाचो नाचो, हिल हिल के नाचो, हिल हिल के नाचो नाचो। That was so good, you know. I like to move it. I like to move it. I like to move it. You like to move it. वो जो था, हाँ, हम लोगों ने कैरेक्टर्स का वो किया था, मतलब ऑडिशंस दिए थे सबने, और फिर हमने इसको डब किया। तो बहुत अच्छा प्राउड फील होता है कि जब हम लोग ये चीजों को आज भी जाके उस एरा में देखते हैं कि यार हमने ये सब चीजें की हुई हैं। इट्स सो मच प्राइड इट, एंड वी हैव लर्नड सो मच, एंड दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Yeah. So it was fun. Yeah, and while you were working with us, you transitioned to doing a lot of film work, a lot of independent album work. Your singing work grew tremendously. Yeah, actually, so yeah. I'd like you to. मैं बेसिकली मैं आया ही था इसीलिए, मैं बस बेसिकली बॉम्बे आया ही सिंगर बनने के लिए था। लेकिन इनिशियली जब मुझे समझ में आया कि इट इज नॉट इजी टू इवन रीच द म्यूजिक कंपोजर्स, एंड यू नो, एंड दे डोंट हैव टाइम, और मैं उनको गलत भी नहीं बोलता हूँ, बिकॉज दिन में मुझे भी आज देखो, आज सोशल मीडिया के आने के बाद दिन में कम से कम 150-200 मैसेजेस आते हैं, लोग अपना गाना भेजते हैं सुनने के लिए, मैं सबको सुन नहीं पाता हूँ। तो आज मुझे फील होता, पहले मुझे लगता था यार ये लोग सुनते ही नहीं है, कभी हम गाना देके आते, कभी सीडी देके आते, ये लोग सुनते ही नहीं है, बट उनका वो काम नहीं है, उनका काम है म्यूजिक बनाना, यू नो। और तो बहुत सारी गलत फहमियां जिंदगी में दूर हुई हैं कि नहीं, कहीं ना कहीं वो भी गलत नहीं है, ठीक है, इट्स ओके, बट किस्मत आपकी अच्छी हो तो कोई ना कोई सुन ही लेता है। और एक्टर संजय दत्त ने मुझे सुना और उन्होंने मुझे बुलाया, एंड ही लव्ड माय वॉइस सो मच, देन ही गेव मी 4 फिल्म्स एट वन गो। आई गॉट रक्त, आई गॉट मुसाफिर, आई गॉट दीवार, एंड आई गॉट रुद्राक्ष। All these 4 films he gave me at one go, and he called 4 people in front of me. He said, these 4 songs Krishna is going to sing. So I've been very, very lucky. I pray for him to recover fast. His health is not, his health is not good. उन्होंने मुझे इतना confidence दिया. I've been so lucky कि संजू सर मुझे अपनी गाड़ी में दूसरे लोगों के पास ले लेके जाते थे, सुनाते थे कि इस लड़के को सुनो। ऐसा कोई नहीं करता इंडस्ट्री में। और ये नेपोटिज्म का आजकल जितना ये बात चल रही है, सब चल रहा है, नेपोटिज्म होता तो शायद कृष्णा भी और आज गाने नहीं गा रहा होता है, जरूर होगा जरूर। और ऑब्वियस बात है कि अगर आज मेरे पास करोड़ों रुपए हो, मैं किसी फिल्म में लगा रहा हूं, तो मैं अपने जानने वालों के साथ ही काम करूंगा और कोशिश करूंगा और अच्छे एक्टर्स बाहर से लूंगा, तो इसमें कोई वो नहीं है। बट ये स्टाइलें आनी चाहिए, और सब अपनी किस्मत से ही आगे आते हैं, किसी को ऐसे ना कोई रोक सकता है, किसी की किस्मत किसी से कोई छीन नहीं सकता। दैट इज व्हाट अंडरस्टैंड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे कितना भी ऐसे, तो फिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, या फिर इरफान खान साहब हैं, या राधिका आप्टे जी हैं, इस तरह के एक्टर्स फिर आते ही नहीं ना सामने, अगर राइट वो होता तो। बट ये स्ट्रगल किस लाइन में नहीं है, हर लाइन में हम। जी जी जी, करण इज ऑन, ही इज सेइंग हेलो सर जी। हाय करण भाई, आपका जिक्र कर रहे थे थोड़ी देर पहले, एंड आज भी मेरे हाथ आपके सामने यूं ही रहते हैं, आप सभी के सामने।
एंड मतलब Speak of मैं the devil इसीलिए and the devil appears. डेविल अपीयर्स Speak या of the devil. ही इज डन सो मच गुड। ही कहाँ बीआर में हम लोग भी डबिंग किया करते थे, और बीआर के बाद ही मेड हिज ओन फोली स्टूडियो, ही इज डूइंग हिज फोली जॉब एंड इज डूइंग अ ब्रिलियंट वर्क। एंड बहुत खुशी होती है, प्राउड फील होता है कि हमारे साथ जितने लोग हैं सब लोग अच्छा कर रहे हैं। एंड भगवान बाबा की कृपा है हम सब पर कहीं ना कहीं। Right, जी right. So why don't you sing us one of your favorite, your very first hit? हाँ हाँ ओके। सो मुसाफिर का गाना जो सबसे पहले मैंने रिकॉर्ड किया था, मेरे को एक्चुअली कॉल आया था पहले, मुझे विशाल नहीं, मुझे शेखर रावजियाने ने कॉल किया कि हाय कृष्णा, दिस इज शेखर स्पीकिंग एंड वी वांट टू रिकॉर्ड यू फॉर अ सॉन्ग। तो उससे पहले मैं क्या कहता हूँ, जनरली आलाप्स और बैकिंग वोकल्स वगैरह करना शुरू कर दिया था मैंने फिल्म्स के लिए। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, मैंने कहा बैकिंग वोकल वगैरह है तो हम कल कर लेते हैं। कहते नहीं नहीं नहीं, बैकिंग नहीं, वो गाना सोलो है, आपने ही गाना है, और संजय गुप्ता जी ने बुलाया आपको। तो मैं गया उनके ऑफिस जुहू में, मैंने आई वाज वेरी एक्साइटेड, मैंने कहा ऐसे कैसे मिरेकल हो गया कि मुझे एकदम से एक सोलो गाने के लिए बुलाया जा रहा है। तो वहां पहुंचा तो संजय गुप्ता जी मिले और वो कहने लगे ये क्या कर दिया तुमने कृष्णा। मैं डर गया, मैं कहा क्या हुआ सर। बोलते यार संजय दत्त इज मैड ओवर योर वॉइस एंड ही इज बीन लिसनिंग टू योर वॉइस लाइक डे एंड नाइट एंड स्टफ लाइक दैट। तुमने वो कुछ नुसरत साहब का कोई वर्जन किया था, तो ये गाना सुनो। तो वो गाना था हो दिल के जो अरमां थे दिल में ही रह गए, आशिकी जो की तो हम अश्कों में बह गए, गम का फसाना है दर्द ये पुराना है, गम का फसाना है दर्द ये पुराना है, इतना भी कोई सताए ना रब्बा, जिंदगी में कोई कभी आए ना रब्बा, डोलना आए जो कोई ना रब्बा, देने हो गर मुझे बाद में आंसू, तो पे कोई हंसाए ना रब्बा। तो विशाल शेखर की ये कॉम्पोजिशन एंड कुमार ने ये गाना लिखा संजय गुप्ता जी की फिल्म मुसाफिर के लिए गाना था। संजय दत्त सर की वजह से ये गाना मुझे मिला। पहली रिकॉर्डिंग मेरी लाइफ की ये थी। और उसके बाद फिर मैंने इश्क खुदाई किया शंकर एहसान लॉय के साथ, देन आई डिड आदिश श्रीवास्तव जी के साथ, एंड जर्नी स्टार्ट हो गई सिंगिंग की। Oh, that's excellent. That's excellent. That was lovely. You made me forget about everything else I wanted to talk about. But yeah, this is a personal favorite, as Karan is also saying this is a personal favorite. I agree with you, Karan. That this is a personal favorite of mine too. Savita is also saying that was soul stirring. Yeah. Thank you. Really, really appreciate Savita ji. Thank you. So you, even though you really, really hit it big, and I'm sure with every hit comes, the usual, the shows, the interviews, the whole paraphernalia that comes with it. You've enjoyed it all. But we all, I mean, even what goes up must come down, right? Sometimes. So we've all seen those ups and downs, irrespective of, where we've reached and what we've achieved. We've all seen those ups and downs, and somewhere they start affecting us. So I remember you talking also recently on, I think maybe your Facebook page or one of your social media handles about having to deal with mental health issues, that the kind of things you went through. And I think this has become a part and parcel of, first I used to think that it is a necessary part of an artistic person's life. Correct, but now I'm seeing it more and more all across, especially with the lockdown. So many people are feeling it in so many ways that I'd like you to talk about that a little bit if you can. Yeah. देखिए हम आर्टिस्ट लोग जो होते हैं वो थोड़े एक्स्ट्रा इमोशनल होते हैं, rather than normal people. I won't say कि बहुत ज्यादा, लेकिन आर्टिस्ट लोग होते ही सेंसिटिव हैं बहुत ज्यादा, बिकॉज कहीं ना कहीं ये आर्ट फॉर्म जो भी या क्रिएटिविटी आती ही उसी चीज से है। वो आप हैं या ज्यादा दुखी हो सकते हैं तो आप रिलेट कर पाते हैं कई बारी। जैसे मुझे कोई सैड, जैसे मैंने चक दे इंडिया का मेरा गाना गाया था,
आई विल कनेक्ट दिस विद चक दे सॉन्ग. मैंने चक दे इंडिया का गाना जो है मौला मेरे ले ले मेरी जान, व्हेन सलीम मर्चेंट कॉल्ड मी टू सिंग दैट सॉन्ग, पहली बात तो उन्होंने मुझे ये कह दिया कि कृष्णा ये गाना आपके लिए नहीं है, यू नो. सो देयर स्ट्राइक्स ऑन योर माइंड स्ट्रेट अवे कि गाना आपके लिए नहीं है, बट आई एम ट्राइंग टू पिच दिस इन योर वॉइस टू आदित्य चोपड़ा जी, बिकॉज मेरे को बिलीव है कि आपकी आवाज में गाना अच्छा लगेगा. एंड आई थिंक राहत फतेह अली टू सिंग दैट सॉन्ग एंड ही वाज ट्रैवलिंग इन समवेयर फॉर टूर और समथिंग लाइक दैट. सो दे सेड कि ये कृष्णा आप एक ट्राई मार दो और हो सकता है आपकी वॉइस चिपक जाए, यू नो. दे टुक अ चांस विद इट. तो होता क्या है, देखिए साइकोलॉजी वहीं पे स्ट्रेट अवे आपके माइंड में हिट करती है कि यार समथिंग आई एम सिंगिंग व्हिच इज नॉट माइन. तो आप ऑटोमेटिकली सोचते हैं कि मैं आधा ही दूं अपना. आदमी पूरी ताकत लगाना चाहता है, लेकिन वो या बैक सीट, यू नो. और आपका सबकॉन्शियस आप अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन आपका बैक ऑफ द माइंड ये कहता है कि यार तेरे लिए तो है ही नहीं, तेरी आवाज तू कितना भी अच्छा गा ले अप्रूव होगा नहीं. ये बैक ऑफ माइंड रहता है. लेकिन क्या हुआ कि गाना गाया मैंने. गाना गाने के बाद मैं उन्होंने बोला ठीक है 2-3 दिन में मैं आपको बताता हूँ, जब आदित्य जी सुनेंगे उसको तो उसके बाद आई विल टेल यू कि उनके व्यूज क्या हैं. तो मैं मुश्किल से SNDT कॉलेज के वहां उनका स्टूडियो है, वहां से JW मैरियट तक गया हूँगा. तो आपको तो पता ही है वहां से ज्यादा दूर नहीं है. सो अबाउट 3.5 किलोमीटर्स गया हूँगा. तो मुझे कॉल आया, कृष्णा वेयर आर यू? आई सेड कि आई एम एट द मैरियट. कहते टेक अ यू टर्न एंड कम बैक. Aditya ji has come, he's heard your voice and he's loved it and we would like to record it tomorrow. So suddenly एकदम से फिर मैं वो खुश भी हो गया, क्योंकि मुझे था, मैंने कहा गा दिया और भूल गया. यूँ कहते हैं ना कि नेकी कर दिया और आप भूल जाओ उसके बाद कि क्या होगा नहीं मालूम. तो समवेयर इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं एज अ पर्सन वहां पे भी जिंदगी में कि कभी भगवान जो है ना उससे बड़ा डिसीजन लेने वाला कोई दुनिया में नहीं है. तो कभी भी डिप्रेस इतना नहीं होना इन चीजों को लेकर कि किसी ने ऐसा बोल दिया है तो ऐसा ही होगा, जरूरी नहीं है. आई डिड माई बेस्ट, ही लव्ड इट एंड एवरी सॉन्ग हैज अ डेस्टिनी. तो वो गाना मेरे लिए ही यू नो था ना, दाना पानी कहते हैं जिसको. तो वो गाना मेरे लिए था, तो वो मैंने गाया और उनको पसंद आया. अगले दिन हमने सेकंड अंतरा किया और इट्स हिस्ट्री, द सॉन्ग इज देयर. बट क्या होता है कि डिप्रेशन में हम लोग इन चीजों को भूल जाते हैं. हम लोग अगले दिन का नहीं सोचते हैं, आज ही का दिन का सोचते हैं और फिर डर के मारे कुछ ऐसे स्टेप्स ले बैठते हैं जो कि बाद में पछतावा होता है. जैसे कई लोग यू नो दे ट्राई टू किल देमसेल्व्स और दे ट्राई टू कमिट सुसाइड और समथिंग लाइक दैट, व्हिच इज नॉट एट ऑल एडवाइजेबल. और हमेशा कोशिश करें, अगर आप अकेले भी हैं तो ट्राई टू टॉक टू समवन जो कि आप समझते हो कि ये इंसान हमें सुनेगा और हमारी प्रॉब्लम्स को कहीं ना कहीं, और हर इंसान के पास कोई ना कोई सोल्यूशन होता है. भगवान ने अगर कोई चीज बनाई है, बनाया हुआ, वी हैव टू फाइंड दैट के यू नो. तो लॉकडाउन की वजह से बहुत लोग डिप्रेस हुए हैं. इसलिए नहीं हुए कि लॉकडाउन हुआ, इसलिए हुए कि अब फ्यूचर खतरे. Yeah, and all of us go through these lows, I think, sometime or the other in our careers, you know, where either we are not happy with the kind of work we are doing or the kind of people we are working with, or we have some other expectations which, interestingly, I learned when I went for an Art of Living course that the first thing they teach you is that expectation kills joy. So half of the problem lies in our mind. Our own expectations only kill us half the time. You know, that we have so many expectations and so many dreams and aspirations that, you know, sometimes I think it's our own mind that starts working against us, na? Correct, yeah. No, but मैं ऐसा फील करता हूँ एक्सपेक्टेशन होना भी जरूरी है, क्योंकि नहीं तो आपका गोल आप रीच नहीं कर. और आर्टिस्ट के लिए अगर वो कहीं ना कहीं ये समझ ले कि हाँ यार मैंने तो पा लिया जो चाहिए था मुझे, तो वो फिर उसकी क्रिएटिविटी पे असर करता है. तो इट इज अ वेरी थिन लाइन कि एक्सपेक्टेशन और ड्रीम्स के बीच की जो थिन लाइन है उसके बीच में रहना है. यू नो, ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं करना है. कि देखो कोई इंसान अगर एक्टिंग करने आता है तो हर इंसान हीरो नहीं बन सकता या हर इंसान हीरोइन नहीं बन सकता, लेकिन आप एक छोटे से कैरेक्टर में भी कितना अच्छा काम करके निकल सकते हो वो भी बहुत मैटर करता है. इसीलिए कभी भी हमेशा अच्छे रोल्स के लिए काम ना कीजिए, हीरो हीरोइन बनने के उसमें मत रहिए. या क्योंकि हर तीसरा बंदा बॉडी बना के घूम रहा है, राइट? तो हर बॉडी बनाने वाला हीरो नहीं बन सकता. हर कोई कैन नॉट बी अ फिल्म स्टार. यू कैन बी अ फिल्म स्टार बट यू कांट बी अ हीरो. यू नो, दैट्स व्हाट आई मीन टू से. सॉरी, स्लिप ऑफ टंग. तो ये कि अचीव करना इज मोर इम्पोर्टेंट देन आपने क्या अचीव किया. आज मैं एक रीजनल
स्टेट के लिए गाकर भी अगर वहां बड़ा सिंगर बन जाता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइफ गोज ऑन। आई मीन मैं बॉलीवुड में नहीं गा पा रहा हूँ तो क्या हो गया, मैं इस चीज को समझा। मैंने कुछ साल तो मेरे को काफी गाने मिले। माय लास्ट सॉन्ग केम इन 2017 व्हिच इज अ मैसिव हिट, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, मतलब ब्रेकअप एंथम है वो। के बाद मेरे 2-3 गाने आए जरूर हैं, लेकिन रिकॉर्ड मैंने बहुत किए बट रिलीज कोई नहीं हुआ है। शुरू में मुझे लगता था कि नहीं यार कुछ पॉलिटिक्स है या कुछ ऐसा है, या बट फिर मैंने इस चीज को रियलाइज किया, नहीं यार मेरी आवाज की एक मैं पहचान बना चुका हूँ, तो जो काम मेरे पास आना होगा वो आएगा ही आएगा। और वो उसमें मैं दुखी होने की जरूरत, इंडस्ट्री का रूल है, यूनिवर्स का रूल है कि नए लोग आते रहेंगे, पुराने लोग रिप्लेस होते रहेंगे, फिर भी पुराने लोग पुराने रहेंगे, तो और आपकी जो आपने एक नीश बनाई है वो नीश आपकी रहेगी। सो करेक्ट, सो वो चीज को समझ गया जिस दिन आप, तो उस दिन आपको फिर टेंशन होनी बंद हो जाएंगी। और सीरियसली बाबा की इतनी कृपा है कि मैं लॉकडाउन के फर्स्ट मंथ में काफी डिप्रेस, क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, सारी सेविंग्स खत्म हो रही हैं, कहीं से कुछ इनकम है नहीं। आप करेंगे कि अच्छे टर्नओवर वाला इंसान अगर में सिर्फ 40,000 रुपए कमाए तो लगता है कि यार ये क्या हुआ। पर फिर मैं सोचता हूँ कि मुझसे भी कई नीचे के लोग हैं जिन्होंने 40 रुपए भी नहीं कमाए। फिर अगर मैं उस चीज को भगवान का शुक्राना ना करूं या शुक्रिया ना अदा करूं तो गलत है। तो कहीं ना हर वक्त सेम नहीं होता है लाइफ इज ऑल अबाउट एन अप्स एंड डाउन लाइक अ ग्राफ, अगर आप सीधे लाइन हो गए मतलब आप खत्म हो गए, तो वो सीधी लाइन मत होने दें, डाउन है तो फिर अब भी जाएगा। सो दिस इज हाउ योर लाइफ कीप्स गोइंग। सो डिप्रेशन कोई इलाज नहीं है, यस कई लोगों को है। मैं जो भी आज देख रहे हैं इस माध्यम का, गोल्स अपनी जो है हमेशा वो रखें जो आप अपने को अंदर से बेटर कोई नहीं जानता है। मैं कितना भी कह लूं कि मैं बहुत बड़ा गायक हूं या बहुत बड़ा जो हूं, लेकिन मेरी लिमिटेशंस मुझे ही पता है, दूसरे सामने वाले को तो मुझे पता है कि मैं क्या कर सकता हूं क्या नहीं कर सकता हूं। तो मुझे ओवर थिंक करनी है अपने को लेकर। ओवर कॉन्फिडेंस जरूरी, कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। सो डील करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने गोल्स पे कॉन्सेंट्रेट करें, ना कि डिजायर्स पे। If I think of a Bentley every day and start crying that I can't have a Bentley and I get depressed for not getting a Bentley and somebody else has a Bentley, then I would definitely die without a Bentley. But I have to understand that maybe Bentley is not meant for me. Why not I go for a normal car, which drives well, which has got all the features. जो Bentley खरीदता है उसको ही पता है कि इस नेशन में और ऐसे रहना कितना मुश्किल काम है। So लाइफ की जो सड़क है वो भी ऐसी ही है। लग्जरीज जो भी लग्जरीज में जी रहे हैं उनको जाके कभी पूछिए कि उनका पास्ट क्या रहा है, तब वो बताएंगे कि हमने इस तरह से ग्रो किया अपनी जिंदगी में। और हर एक की कोई ना कोई कहानी। हाँ, मौला मेरे गा दो प्लीज। अरे आई नो दैट्स वन ओके। तेरे संग खेली होली, तेरे संग थी दिवाली, तेरे आंगनों की छाया, तेरे संग सावन आया। फिर ले तू चाहे नजरें चाहे चुले, लौट के तू आएगा रे शर्त लगा ले। तीजा तेरा रंग था मैं तो जिया तेरे ढंग से मैं तो, तू ही था मौला तू ही यार, मौला मेरे ले ले मेरी जान, मौला मेरे ले ले मेरी जान। थैंक यू। So beautiful, so beautiful. So tell me a little bit about your love for photography. How did you develop that? How did that come about? 2006-7 आई थिंक 7 या 8 में फेसबुक आया। तो फेसबुक जब आने लगा तो हम लोगों को जनरली फोटोग्राफी मेरे को लगता था कि हाँ एक कैमरा ले लो और अपने फोटो खींच लो, यही फोटोग्राफी होती है। But when the social media came, when Facebook came, we got connected to people from world over. I mean, and I could see some good photographers, their work.
and how they do wildlife, how they do macro photography, how they're doing दूसरे लोगों का काम देखा थे ना कि यार ये भी एक ऐसा फील्ड है, हाँ, कि मैं क्यों ना ट्राई। तो फिर मैंने एक I used to travel shows के लिए, I used to travel, so I picked up a 350D of Canon 350D from Hong Kong, and then I started clicking pictures। और हर जैसे फोटोग्राफर शुरू में कबूतर ही होते हैं बेचारे, जो इजीली अवेलेबल एनिमल होते हैं या बर्ड्स कह सकते हैं कि कबूतरों का एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गया। में कोई बैठा है, कहीं बैठा है, तो कम से कम मेरा हार्ड ड्राइव कबूतरों की फोटो से भर गया, डिफरेंट। तो देन आई अंडरस्टूड कि नहीं, कबूतर इस लेंस से नहीं होता है उसकी। फिर आई यूज्ड टू थिंक कि उनकी आंखें इतनी अच्छी कैसे दिख रही हैं, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा इनके इतना क्लोज कैसे है। मैं जब जूम करता हूँ तो उसकी आंख ब्लर हो जाती है, ऐसा क्यों है? देन फिर टेक्निकलिटीज में घुसा मैं कि एपर्चर क्या होता है, फ्लैश क्या होता है, और जूम की कहाँ जरूरत पड़ती है, वाइल्ड लाइफ में कौन से लेंस यूज होते हैं, मैक्रो के लिए देयर इज अ डिफरेंट लेंस, पोर्ट्रेट्स के लिए MM यूज होता है, कुछ लोग मैक्रो लेंस भी यूज करते हैं पोर्ट्रेट्स के लिए। देन आई अंडरस्टूड द होल थिंग, मेरा इंटरेस्ट जागने लगा, और विद गॉड्स ग्रेस आई केप्ट डूइंग शोज। पैसा धीरे धीरे, तो फिर मैंने इन्वेस्ट करना शुरू किया। तो आज मेरे पास कम से कम कुछ नहीं तो 20-25 लाख का इन्वेस्टमेंट है ऑन लेंसेज एंड कैमरा बॉडीज। So that is how I've understood, including lights and all. So मतलब आज हम भी जो है, we are talking with this light which is a flash and a model light which I'm using. So also for talking to you. So it's got a soft box in it. So बहुत soft light आता है इसमें. So these nice things. तो फिर धीरे, और मैं टेक सेवी रहा हूँ शुरू से, टेक्नोलॉजी ऐसी चीजों पे, गैजेट्स पे। आपको ये भी पता ही होगा कि डबिंग वर्जन पे मैं आता था। हाँ, and I use Anju Jambwal's this thing. She used to say, जब हम एक बार पहली बार मैं एक क्राउड डबिंग के लिए हम लोग मिले थे आराधना स्टूडियो में, तो वहां पर मेरे हाथ में सेलफोन था। मैं दुबई से आया था उस टाइम। दुबई में सेलफोन काफी पहले से आ गया था, इंडिया में स्टिल इट वाज 16 रुपीज इनकमिंग, 16 रुपीज आउट गोइंग, तो मेरे हाथ में नोकिया का एक फोन था, एंड तो आई भाई मैं तो नॉर्मली आया हूँ। तो अंजू जी को लगा कि ये शो ऑफ कर रहा है, ये कौन है भाई, ये कौन है भाई, मोबाइल लेके पहुंच गया क्राउड डबिंग में, और ये कौन है, क्या है एंड ऑल। देन जब उन लोगों ने मुझसे बात की, मिले, हम लोग इतने अच्छे दोस्त बन गए। तो फिर हम लोग जब भी जिक्र करते हैं इन बातों का, तो बड़े बड़े खुशी से जिक्र करते हैं कि यार ऐसे भी हमने दिन देखे हैं। वी यूज्ड टू थिंक कृष्णा में कितना एटीट्यूड है, ये क्या मोबाइल लेके क्राउड डबिंग पे, 300 रुपए की डबिंग में मोबाइल लेके आ रहा है, 16 रुपए इनकमिंग, 16 रुपए आउट गोइंग, इसको बट इट इज फन, टेक सेवी में रहा हूँ, तो टेक्नोलॉजी से जुड़ना। 16 रुपए के जमाने में, 16 रुपए के जमाने से हमने मिस्ड कॉल का फंडा सीख लिया था कि कॉल को कैसे काटना है, बिल्कुल, लैंडलाइन से कॉल बैक कैसे करना है और वो नंबर लिख के लैंडलाइन से कॉल करना। करेक्ट, एब्सोल्युटली। आई रिमेम्बर दैट। मोबाइल ऑपरेटर्स भी सियाने हो गए, उसके बाद मोबाइल ऑपरेटर्स भी सियाने हो गए कि अगर कॉल आया और आपने काटा भी है तो उसका हो गया था। तो फिर धीरे धीरे फिर इट इज, अब इंडिया इज द चीपेस्ट इन द वर्ल्ड व्हेन यू काउंट यूजर्स, एंड बहुत ज्यादा सेलफोन यूजर्स भी हैं। थिंग्स हैव चेंज्ड सो मच, वी हैव सीन जो एरा हमने, आई मीन इट्स फन। तो गैजेट्स की बात कर रहा था, तो गैजेट्स में इंटरेस्ट मेरा शुरू से ही था, तो उस वजह से फिर मैंने फोटोग्राफी सीखी, और अब मैं पोर्ट्रेट्स का, और मेरे जितने आर्टिस्ट फ्रेंड्स हैं जो कि इस इंडस्ट्री में आए हैं, जिनको पोर्टफोलियोज की जरूरत होती है, मैं उनके लिए फ्री में फोटोशूट्स करता हूँ। ये मैं आपके इससे माध्यम से बता रहा हूँ। ओनली द स्टूडियो चार्जेस आई टेक, एंड जो भी स्टूडियो चार्जेस रहता है और मेकअप हेयर का, वो उनको पे करना होता है। बाकी मेरी कोई चार्जेस नहीं होते। 10-15 अच्छे फोटोग्राफ्स उनको खींच के देता हूँ, क्या वो लोग अपना काम शुरू कर सकें। है कृष्णा, ये जो मैं जान गई बस। बिल्कुल, और आपके लिए भी एनी टाइम, आई मीन ऑलवेज, मैं तो इन डेप्थ हूँ आप लोगों के लिए, तो हमेशा आप कह सकते हैं, यू कैन जस्ट टेल मी व्हेन वी वांट टू डू द पोर्ट्रेट्स। सो ये मैं एक हेल्प के तौर पे कर रहा हूँ कि भगवान ने एक आर्ट दिया है, तो पैसा तो सब कमा लेते हैं, और मुझे क्या होता है, व्हेन आई शूट एवरी पर्सन इन अ डिफरेंट वे, आई आल्सो लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स इन फोटोग्राफी। सो मैं स्पेशली स्ट्रगलिंग लोगों के लिए, जो है एक्टर्स हैं जो नए आ रहे हैं और जिनके पास नहीं है बिल्कुल भी साधन के, वो खिंचवा के फोटोज अपने पे, उनको हेल्प करता हूँ।
So this is what I'm using my photography for. और बाकी आप तो देखते ही हो, मेरे चावल अलग दिखते हैं, मेरा मटन अलग दिखता है, you know, चने की दाल हो वो अलग दिखती है. What's cooking this weekend? What is the plan for this weekend? Tomorrow I'm planning to cook mutton Rogan Josh. So वो कल pictures डालूंगा तो शाम हो जाएगा. We are connected on Facebook. We tried dabba gosht last weekend and it was fabulous. Fabulous. Wow, great. Very good, very good. So what's your latest toy? Sorry, लॉकडाउन में मैं एक जो नई चीज सीखी थी वो थी वाटरमेलन का जो रेंड उसकी सब्जी बनाना. वो भी लौकी की तरह बनता है, थोड़ा बॉयल होने में टाइम ज्यादा लेता है, लेकिन it's very tasty. I'll send you the recipe on my this thing on the WhatsApp. आप ट्राई कीजिए एक बार जरूर. हम उसको वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, लेकिन उसको यूज करके उसकी एक सब्जी बनती है चने के दाल के साथ. मैं आपको भेजूंगा रेसिपी. वो मैंने लॉकडाउन में सीखा. यहाँ इतना डर लगता था लाने में, लाना ही नहीं, फिर उनको अच्छे से धो, फिर डर लगता है 50 बार हमको हाथ धोने की आदत पड़ेगी. हम लोग पैरानॉइड हो गए हैं एज अ यू नो, कहते हैं ना होमो सेपियंस की पूरी जो कायनात है या है कौम कह सकते हैं या जो भी है, वो सारी घबरा चुकी है इस वक्त के. हर चीज धो लो, हर चीज वो कर लो, कहीं भी कोई सरफेस टच किया तो डर लगता है कि पता नहीं क्या होगा. बट अब धीरे धीरे वो डर जा रहा है. थिंक होपफुली सब काम जल्दी से स्टार्ट हो, सब लोग काम करें, सब लोग यू नो गेट बैक टू योर नॉर्मल लाइफ. दैट्स व्हाट. या Oh, absolutely. I mean, we really नया गैजेट wish that for everybody. नया गैजेट. Yeah, what's your latest toy? Latest जो तुम सीख रहे हो या जो you're very excited about. Okay. ऐसा कुछ नहीं. कैमरा, अभी नया कैमरा आया है. We have understood now. We have started doing music videos on our own. It has increased. अभी सोनी का एक कैमरा आया है A7S3. That is doing brilliant job. Now you shoot on 4K with 120 frames per second slow mo videos. So जैसे रेड नहीं कर सकते, हर कोई एलेक्सा या रेड अफोर्ड नहीं कर सकता. मेरे पास जो है लेंसेज की जो रेंज है सोनी की, सारी G Master lenses हैं. So it works very good with the G Master lens to shoot music videos and vlogs. Vlogs के लिए तो छोटे मोटे कैमरे भी आते हैं, लेकिन ये कंप्लीट प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग करता है. तो ये एक गैजेट है जो मुझे बहुत पसंद है. अंडरस्टूड के दिस इज समथिंग आई लव वर्किंग ऑन. एंड अभी हम 4K, पहले क्या करते थे HD में ही 120 फ्रेम्स पर सेकंड शूट कर पाते थे, अब 4K पे भी कर सकते हैं. सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग. और इसमें सोनी का देयर इज अ वेरी गुड फीचर, जो कि आंखों को आंख एक बार फोकस हो जाए तो आप कितना भी मूवमेंट करेंगे आपकी आंख को ट्रैक करके रखता है. सो फॉर वीडियो इट इज ऑसम एंड इट ट्रैक्स इवन एनिमल आईज एंड इट differentiates between animal and humans, so that technology I'm enjoying and I'm loving it to it's become very nice. So अभी Apple के बहुत सारे पिक्चर्स मैं खींचता हूँ तो अच्छा लगता है. उसकी आंखें, उसकी आंखों के अंदर उसका कॉर्निया, रेटिना, आइरिस बहुत अच्छा दिखता है, मजा आता है. So these gadgets I'm using now. और अभी someone is asking what mic are you using? What mic are you using which is visible right now to us? This is a ProSonos M7 mic. It's very good for a home setup. It comes with a sound card. ProSonos का साउंड कार्ड आता है, हेडफोन्स आता है, माइक आता है, स्टैंड आता है, सब मिला के कुछ 19,000 रुपए में सारा सामान आ जाता है. You also get Studio One का फ्री सॉफ्टवेयर भी आपको मिलता है, और साथ में दूसरे सॉफ्टवेयर एबल्टन भी फ्री है इसके साथ. तो आप जरूर खरीदें इसको. M7 ProSonos, स्टैंड, माइक, headphones and sound card. You get all these for 19,000 rupees, which is a very good deal. And so home setup जो भी बनाना चाह रहे हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि ये वाला सेटअप जरूर खरीदें. It's called ProSonos. ये कहाँ से खरीद सकते हैं लोग? You can buy from Pro Audio. Pro Audio है अमल स्टेट में उनका. Pro Audio. There is a shop called Pro Audio. Okay. Yeah, you can order online as well. And वो आपको घर पे भी डिलीवर कर देते हैं. Pro Audio, you can go to their website and order. And मेरे को घर पे डिलीवर, बस मैंने उसको स्टैंड वैंड को अच्छे से सैनिटाइज किया. माइक सैनिटाइज करने की जरूरत नहीं है, उसको वाइप कर लिया, और that is the thing. So और अपने हाथ साफ रखिए. That's it. Oh, that's fantastic.
and how you've connected it to your phone. No, the mic I'm recording comes through the speaker, the voice and all. Now we are not using the mic exactly. I was working on something before we started the live, so it is like that. ये एक थोड़ा एम्बियंस बनाने के लिए मैंने लगा दिया था कि लोगों को दिखे कि मेरे पास माइक भी है और होम सेटअप भी है. Gaurang is saying hi to you. Gaurang is saying hi Krishna, so long. Gaurang Arora. कैसे हैं? हाँ, of course गौरंग जी के साथ भी कितनी डबिंग्स हमने करी है उनके स्टूडियो में, लोखंडवाला में. And give my regards to your family and nice to see you after a long time. So जी मोना जी. Maninder is saying इश्क दा बुखार गा दो प्लीज. यार देखो, ये गाने का बेसिकली आज का जो सेशन है ये सिंगिंग वाला नहीं है. सारे ये मेरे वो फैंस हैं जो कि मेरे नॉर्मल चैट्स पे भी आते हैं सिंगिंग के लिए. बट आज हम कुछ डिफरेंट बातें कर रहे हैं जिससे बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा. लेट्स टॉक अबाउट वॉइसिंग. अगर आप और कुछ कहना चाह रहे हैं मुझे. What I really want you to tell a lot of the people who are listening to us is that, you know, like especially a lot of people who come to me to learn voicing. Earlier I used to tell them, यार 1 साल तक डटे रहो तो कुछ काम मिलेगा और जरूर लोग तुम्हें बुलाने लगेंगे, पहचानने लगेंगे. हाँ, अब कोई आता है तो मैं कहती हूँ 5 साल तक डटे रहो तो कुछ बात बनेगी. Because you know the thing is that the clutter is growing, the number of people are growing, the market size is growing. You have to break through the clutter. You have to make yourself recognizable. You have to stay in people's memory. You have to build confidence in the people who call you. So ये सारी बातें करने में थोड़ा टाइम लगता है. This is what I tell people. So what would you like to tell all the aspiring artists, whether voice actors हो, singers हो, especially जो अभी बहुत fear कर रहे हैं situation को, and you know having a hard time, especially those who have started out और lockdown हो गया समझो, you know, तो उनके लिए तो काफी तकलीफ है. जो बॉम्बे आए हैं recently and उनके लिए to make a living in Bombay is so difficult. हाँ, because correct, too difficult. It's very expensive and none of the bills have stopped coming, you know, no stimulus package for artists or anything like that from the government. So हमको अपने बलबूते. मैं जितने भी डबिंग के एस्पायरिंग बच्चे हैं सुनना चाहूंगा. देखो, आज भी I have reached one level in life where you Google my name and you'll find who I am. But still, if I go to Sound and Vision today, I have to give auditions, which is a normal routine. ये नहीं कि कृष्णा बेरा आज will walk in and they'll take my voice and you know I'll start dubbing. ऐसा नहीं है. जो प्रोसीजर पे आप जा रहे हो वो प्रोसीजर पे मुझे भी जाना पड़ेगा अगर आज मैं दोबारा से डबिंग करना चाहता हूँ. Even if for a singing, if you're singing for a character in Disney or any other like Warner Brothers or anything, they need to approve your voice. You have to understand that. It's not that Mona ji is approving your voice, you know, Sunaina ji is approving your voice. इनके हाथ में हो तो मैं डेफिनेटली पहली चॉइस रहूंगा या सेकंड चॉइस या थर्ड चॉइस है जो भी है. बट इनके हाथ में नहीं है. और ये यहाँ नहीं, हॉलीवुड में भी ये ट्रेंड है कि वॉइस डबिंग करते हैं, वॉइस मैच होनी जरूरी है. वो चाहे कितना भी बड़ा स्टार हो, कोई फर्क नहीं, सबको वही प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है. तो ये समझिए कि अगर आपको बार बार बुलाया जा रहा है, इट इज नॉट दैट दे वांट टू यू नो एक्सप्लॉइट यू और टाइम, दे वांट टू वेस्ट योर टाइम. इट इज बिकॉज द वॉइस हैज मैच द कैरेक्टर यू आर डूइंग. फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे आंखों में हमने आपके सपने सजाए हैं, ये किशोरदा का गाना है. अब हम किशोरदा का गाना गाएंगे तो आंखों में हमने आपके, ऐसा नहीं गा सकते हैं. ये सूफियाना वॉइस है. सो द टेक्सचर यू हैव टू अंडरस्टैंड इट. You can't romance like this. आंखों में हम ऐसे करेंगे तो कोई रोमांस करेगा ही नहीं आपसे. तो हर गाना हर सिचुएशन के लिए बना के आवाज डिफरेंट उसके लिए बनी है, तो वो अप्रूव होना जरूरी है, उस पर फिट होना जरूरी है. अभी ये गाना है, दिल कमला डूब डूब जावे सजना तेरे बिना, ऐसे नहीं गा सकते. किशोरदा के स्टाइल में आप इस गाने को नहीं गा सकते. दिल कमला डूब डूब जावे सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, इसका अलग मजा है. तो हर आवाज की अलग एक पहचान है, हर आवाज अलग एक वैल्यू है.
तो कभी अपने को डिग्रेडेड मत समझिए या कभी अपने को सुपीरियर भी मत समझिए। आप उस कैरेक्टर पे जाने जरूरी हैं, वो चाहे कितना भी बड़ा वॉइस आर्टिस्ट हो। आज निनाद भाई को भी आके करना पड़ता है वॉइस के लिए, विराज भाई को भी ऑडिशन देनी पड़ती है। जितने बड़े बड़े वॉइसेस हैं इंडस्ट्री में आज काम कर रहे हैं, मोना जी तक ऑडिशन देती थी अपने टाइम पे भी, जबकि वो ओन करते थे उस अभी भी देती हूँ। परसों मैंने एक ऑडिशन दिया और कल्पेश ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। That's what. तो रिजेक्शन को ये दिया, अरे लोग जान के काम नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपकी आवाज जिस दिन अप्रूव हो जाएगी तो दे डू वर्क विद यू, व्हाई नॉट। और मैंने किसी सिंगर से उस दिन बात कर रहा था, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात शेयर करूंगा आपसे। वी हैव अबाउट 5-7 मिनट्स मोर। सो वो सिंगर मेरे को बोलता है कि यार पैसे नहीं देते यार वो लोग, तो एनिमेशन में गाने तो गा लूं मैं क्या यार, हर नहीं होते, और जहाँ पैसे होते हैं वहां मिलेंगे। अगर कोई बहुत बड़ी फिल्म वर्ल्ड वाइड रिलीज हो रही है और सारे एक साथ रिलीज हो रही है एक दिन पे, उसके बजट्स अच्छे होते हैं, और जब अच्छी बजट्स भी मिलते हैं। बट एनिमेशन के जो गाने हैं जो रीडब हो रहे हैं टेलीविजन पे चलाने के लिए ड्यूरिंग लॉकडाउन, पैसा एक्सपेक्ट नहीं करते जो आपको एक नॉर्मल जिंगल या गाना गाने को। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू नो, इट इज योर चॉइस। आप काम करना चाहो नहीं करना चाहो इज योर चॉइस, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड यू आर नॉट बीइंग एक्सप्लॉइटेड इन द वॉइस इंडस्ट्री। इट इज लाइक दैट, यू नो। काम आपसे पैसा है, यू नो। जिंगल गाने का अगर आपको 35,000 मिल जाएगा, बिकॉज वहां 4 करोड़ 5 करोड़ सिर्फ एक गाने का बजट होता है, और यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पूरी कई बारी पूरा एपिसोड का कुछ लाखों का बजट होता है, जिसमें कि मास्टरिंग मिक्सिंग सब कुछ करना पड़ता है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। तो आप लोग डिसअपॉइंट मत होइए और लोगों की बातों में मत आइए। यू आर एट द करेक्ट प्लेस। इफ यू आर इन साउंड एंड विजन, यू आर एट द बेस्ट प्लेस एंड द करेक्ट प्लेस। दे नेवर से थिंग्स, you know, to good things for them. It is my experience in life which has helped me. Yeah. All these 20 years I have understood. काम करके मैंने 2006 तक I can remember 7 साल मैंने अच्छे से डबिंग की है, और रज के डबिंग की है, और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। I have understood. और पैसा भी अच्छा कमाया, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं कमाया, अच्छा खासा। यार इमेजिन करो कि उस टाइम पे भी गाड़ियां खरीद लेते थे हम डबिंग करके। सब सिंगिंग तब शुरू नहीं हुई थी मेरी 2006 से। पैसा नहीं है, पैसा है, बट आप लोगों का नजरिया और सोच ज्यादा वो हो चुका है। मनी माइंडेड मत बनिए, पहले काम करना सीखिए, काम करिए, और जितना काम करेंगे पैसा आपको फॉलो करता है। आप पैसे को फॉलो करेंगे तो कभी काम नहीं कर पाएंगे। Simple as that. Absolutely. I also agree that, you know, if you focus on learning and development and growth, then sky is the limit for where you can reach. Sky is really the limit. इवेंट कुछ लास्ट 10 साल या 12 साल के अंदर इवेंट इंडस्ट्री करके कोई चीज आई है, राइट? पहले तो ही नहीं था। इवेंट मैनेजमेंट, इवेंट इंडस्ट्री एक अलग ही प्रोफेशन बन गया लोगों के लिए। बच्चे छोटे छोटे इवेंट मैनेजमेंट सीख कर इवेंट्स में जाके काम करते हैं। वहां क्या मिल जाता है, वो कई बार मिलता भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो लिखा है आपका वो मिलेगा, चाहे वो 1500 रुपए हो, चाहे 1000 रुपए हो, चाहे जो भी हो। अगर आप दिन का 1000 रुपए भी कमाते हैं तो आप इमेजिन कर लो कि आपने 30,000 या 40,000 पर मंथ कमाया है। फॉर अ न्यू कमर जो कि किसी के यहाँ पेइंग गेस्ट रह रहा है या 2-3 लोग एक साथ रह रहे हैं, 30,000 रुपए महीने का आज कमाना बहुत बड़ा बोन है। हम उस टाइम में रुपए सिर्फ चेक मिलता था और इतने खुश हो जाते थे कि चिकन मटन ला के खाते थे। और उस टाइम पे, खैर उस टाइम पे इतनी नहीं थी, बट वो भी हम लोग उस टाइम पे हमने जिया है उस चीज को, एंड वी हैव अंडरस्टूड कि यार मजा आता है। योर चेक्स कीप रोलिंग व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग। आप पहले आपको ऑडिशन देना पड़ेगा, 1-1.5 महीना ऑडिशंस देने पड़ेंगे, उसके बाद काम मिलना शुरू होगा तो आपके जो चेक्स है ना रोटेशन में आते रहेंगे, फिर आपको पता चलेगा। वो पहले दिन से नहीं मिलता है पैसा। और ये तो ऐसी इंडस्ट्री है जहां हम लोगों को उस टाइम पे याद है कि हमें कन्वेंस मिला करता था, शायद 150 रुपीज ही, अगर आप याद हो। आई थिंक अभी तो वो भी बंद हो गया है। किसी बड़ी फिल्म की डबिंग ऑडिशन नहीं, आई अंडरस्टैंड, अभी वो बंद हो गया है। पीपल आर वेल ऑफ नाउ, बट वो एक जमाना था जब हमने वो भी देखा है कि बिल्कुल हमारे पास कुछ नहीं होता था तो भी हम लोगों को दिया जाता था, और जहां पॉसिबिलिटीज होती है वहां दी भी जाती है। ये भी है कि हमने वो चीज भी देखी है और उससे बहुत कुछ सीखा है लाइफ में। तो मोना जी, आई थिंक ऑलमोस्ट 6-7 मिनट्स और पड़े हैं, तो आप और कुछ इंपॉर्टेंट पूछना चाहें? मैंने काफी कुछ कह दिया। I think it's been a fabulous conversation, Krishna. Really talking to you after so long, and you know, you've brought back so many lovely memories. Same here, and बोलो। Yeah.
कल्पेश हमको करेक्शन दे रहा है, बोल रहा है कि 200 रुपए हमारा कन्वेंस था। हमारे टाइम पे 200 रुपए 150 भी लिया। कल्पेश आया भी नहीं था तब से। मैं समीर के टाइम की बात कर रहा हूँ, जब समीर होता था द बिगेस्ट एक्सप्लॉइटर ऑफ आर्टिस्ट। तो हमें ये साउंड एंड विजन ऑलवेज यूज्ड टू पे वेल, क्योंकि हम लोगों ने 150 में पूरी दिन क्राउड की डबिंग भी की। ग्लैडिएटर की डबिंग की थी। मेरे गले में से तलवार निकलने लग गया था, इतनी हालत खराब हो गई थी। क्राउड इतना ज्यादा हमने, मुझे मालूम है। तो 150 रुपए कन्वेंसेस लाइक वेरी बहुत अच्छा मिल गया। हाँ, कि अगर हो गया तो इट वाज। But thank you so much for sharing. Thank you so much for sharing not only such lovely memories but also such deep insights, because a lot of people who come in, they either get upset or they get impatient or they get disillusioned or they start wondering कि ये क्या है, मैं कहाँ आ गया हूँ. There's not enough opportunity for them to always understand that, these are, unfortunately, it is the system, it is the situation that you have to learn to understand. And that is the great learning that we got from you. Yes. It's a process, even a baby is not born in a day. It takes 9 months. एक जीवन जैसे वो होता है, एक बनता है, एक लाइफ बनता है, उसमें वक्त लगता है। हर चीज में वक्त लगता है, तो वक्त देना सीखें। अभी करंट जनरेशन में मैं देखता हूँ कि इम्पेशेंट बहुत ज्यादा है वो लोग, क्योंकि बहुत ज्यादा ओवर एम्बिशियस होने की वो इम्पेशेंट हो जाते हैं। हम लोगों के टाइम पे जल्दी सब कुछ चाहिए। जगह से कहाँ से ट्रेन्स पकड़ के लोग आते थे, पूरा दिन बैठते थे डबिंग करके, फिर क्राउड डबिंग होती थी। कभी हम लोग मतलब 12 बजे आए डबिंग करने और अगले दिन अर्ली मॉर्निंग तक डबिंग करते रहते थे हम लोग। आई लॉस्ट यू मोना जी। सुबह 11 बजे डबिंग शुरू होती थी और हम लोग नेक्स्ट मॉर्निंग और कई बार फिर भी खत्म नहीं हो पाता था, तो अगले दिन आना पड़ता था। वापस आए, फिर हमने काम किया, डेडलाइंस होते थे काम के, तो ये था। और जब मैं आपको बता दूं, स्टुअर्ट लिटिल का चूहा मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ था, मेरे को रिजेक्शन हो गया। उसके बाद मैंने क्राउड किया, तो वो रह गई थी बीच में बात। तो वो चूहा आई थिंक विराज ने किया था बाद में। तो बेसिकली ये कि वो रिजेक्शन ने मुझे ये सिखाया कि सबसे पहले तो अपनी को जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है ना, उससे समझो कि ये इंडस्ट्री कंप्लीटली डिफरेंट है और आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा सीखने के लिए। देखो कैसे मुझे लीला जी ने यही सिखाया कि देखो कृष्णा, आया करो और देखा करो कि दूसरे लोग कैसे डब करते हैं, देन यू विल अंडरस्टैंड।